अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे बन्नी मंडप जहां पर KSRTC डिपो है, आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि यहाँ पर जो है बहुत आला पैमाने पर एक बस स्टैंड आने वाला है। इस मौके पर जो है यहाँ पर काम चल रहा है। उसी मौके पर हमारे वजीर आला सिद्धरामैया साहब जो हैं यहाँ पर तशरीफ लाए, उनके साथ पूरा एक बड़ा काफिला था और हमारे इस हलके के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब भी जो है यहाँ पर इस मौके पर मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं प्रेस से बात करते हुए, अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए सिद्धरामैया साहब ने क्या कहा है और साथ ही साथ रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इस ताल्लुक से क्या कहा है। आइए सुनते हैं। ಈಗ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು 1400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಕಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಹುಶಃ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಲೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಇದು ಗುಂಡಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದೇ 30 ವರ್ಷ. ಈಗ ನಾವು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30 ವರ್ಷ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ಜಮ್ಮು ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಹಿಂದೆನೂ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2 ಟರ್ಮ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ, ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಏನೇನಾಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. NGT 3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 89 ಕೋಟಿ. ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗಿದಾವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನೆ 2018 ನಾ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಈ ಸಾರಿನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅವರು ದೇವರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೌನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟಲೇ ಸೊ ಮತ್ತು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೆರಿಟೇಜನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. सर, मैसूर शहर में KSRTC जो कदीम बस स्टैंड था उसे पूरी तरह से नवतामीर किया जा रहा है. इस वक्त वज़ीर आला सिद्धारमैया साहब जो हैं यहाँ पर पहुँचे पूरे काफिले के साथ. क्या प्लान है, किस तरह का है, आगे आने वाले दिनों में कब जल्दी से इसको तैयार किया जाएगा, स्थलों से क्या प्लान है? अब तक का जो मैसूर था वो हमारे सामने है ना. इसके ऊपर जिस तरीके से व्हीकल्स के पॉपुलेशन की बढ़ती जो रफ्तार है और साथ ही साथ है ना ट्रैफिक में इतना इजाफा हुआ है कि आने वाले दिनों में है ना ये हमारे सामने डर है कि कहीं ये बेंगलुरु माफिक है ना इसकी तरक्की का रुख ना ले लें. तो इसी वजह से ये हालांकि है ना 10-12 साल से भी ये कोशिश रही है कि मौजूदा जो बस स्टैंड है ये बहुत पुराना हुआ है और एक नए तौर से ना इसका तामीर होना चाहिए. तो जिसमें लॉन्ग रूट्स जितने हैं लगभग हर दिन 2800 से ज़्यादा है ना बसेस यहाँ से है ना अपने अपने सफ़र को तय करती है. तो जिससे लगभग 1500 जो रूट्स हैं वो यहाँ पे लाने का है ना इनका मंसूबा KSRTC के सामने है. मौजूदा ये इमारत 2028 तक है ना ये पूरा होना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर 2027 मार्च तक ये कंप्लीट करने का भरोसा हमारे सामने रखा है. तो जिससे ये 65 एकड़ का जो ज़मीन है यहाँ पे इसका सही इस्तेमाल करना और साथ में यहाँ KSRTC बस स्टैंड आने के बाद इससे जिस तरीके से ना ट्रैफिक के ऊपर है ना इसका असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी हमने है ना ऑफिसरों से है ना गुफ्तगू की है. और ख़ास तौर से जोड़ी तंगमरा का रास्ता जो हो या फिर है ना हमारा बाल भवन के पीछे का रास्ता जो हो इसे है ना कुशादा करके 100 मीटर्स या 30 मीटर्स का रास्ता 100 फीट रोड बनाना करने का एक मंसूबा हमारे सामने है. और मौजूदा एक रास्ते का काम मूडा को दिए हैं और एक रास्ते का काम कॉरपोरेशन अनकरीब में शुरू करने वाला है. तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ के आवाम को भी ना इससे कोई तकलीफ ना हो और साथ ही साथ लोगों को और मजीद तरीके से सहूलतें फराहम करने का काम आज वज़ीर आला खुद है ना इसका मुआयना किए हैं. तो यहाँ पे जिस तरीके से जिन चीज़ों की ज़रूरत थी ये तमाम चीज़ों का है ना उनके सामने हमने आगाह किया है. तो इंशाल्लाह 2027 मार्च ये अपना काम है ना शुरू करेगा, जिससे है ना हमारे इस हलके में एक अच्छा बेहतरीन एक बस स्टैंड आने के इंतजामात जो है और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ये भी हमारे इसी के साथ लगकर है ना आने वाला है. तो इस वजह से यहाँ पे इसका मुआयना और ज़्यादा होगा और इसकी अहमियत बेनीमंटप सिर्फ
साल में एक बार जिस तरीके से दशहरा के दौर में है ना टॉर्च लाइट परेड चलता था, तो उससे हटकर साल के 365 दिन भी यहाँ पे है ना किसी तरीके की एक कार्रवाई होने का एक मंसूबा हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह इससे है ना यहाँ की आवाम को है ना, मानता हूँ कि है ना सोचने वाला है ना इससे तकलीफ होगी सोचता है, लेकिन इससे सहूलत भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी तकलीफ होने के इनकाम आते हैं उसे है ना वहाँ पे है ना उसे सही करने का और लोगों को है ना इससे है ना फ़ायदा पहुँचाने का काम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्या ये सोचा है, जो भी हम अब सदर बस स्टैंड या सिटी बस स्टैंड के नाम से है, दोनों बस स्टैंड जो है यहीं पर मुंतकिल किए? नहीं, पूरे तौर से आज यहाँ पे नहीं लाएंगे उसे, तो इसे है ना स्टेज वाइज लाएंगे। इसी बात को मैंने बताया कि लगभग 2800 ट्रिप्स यहाँ से है ना रोज़ाना बसेस अपना सफ़र तय करते हैं, तो उसमें लगभग 1700 1800 यहाँ शिफ्ट हो गए और बकिया ऐसा 800-900 जो है वो वहीं से काम करेंगे। आने वाले दिनों में फिर सोचा जाएगा। आखिर में जब जाते हुए वज़ीर आला साहब आपका नाम लेकर आपको बुलाए, तो क्या बातचीत हुई सर आपके साथ? आपको कितना जो है आपके ऊपर कितना भरोसा है इस ताल्लुक से लेकर, और आप वो जो है कितनी उम्मीद पर है? नहीं, रिश्ते में कहीं भी है ना दरार नहीं पड़ी है। देखने वाला क्या समझता है वो बात और है, लेकिन है ना ये खुश नसीबी है कि है ना वज़ीर आला जाते वक्त है ना मेरा नाम लिए और है ना मुझे मिलकर है ना वो निकले हैं। और साथ ही साथ जैसे ही वो आए उनको दावनगिरी बागलकोट के इंतखाब की मुबारकबाद देने के साथ साथ ये हमारा एक मंसूबा था, काफ़ी सालों से है ना हुकूमत के ऊपर हमारा ये सवाल था कि है ना हमारे स्कूल कॉलेज को जाने वाले बच्चों के साथ जो ज़्यादती चलती थी वो एक ऑर्डर वापस लेना था। कई मरतबा हमने इसके ऊपर है ना बात की थी, लेकिन है ना टेक्निकल लीगल ओपिनियन लेने के बाद वज़ीर आला कल है ना वो ऑर्डर्स को भी वापस लिए हैं, तो जिससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि है ना हुकूमत हमारे हर मसाइल को है ना हमारे साथ खड़ी है। और साथ ही साथ हमारे कौम के जो बच्चे हैं उनको अपने स्कूल कॉलेज को जाने में है ना जो दिक्कतें होती थी उससे है ना एक नजात हमारे सामने आया है। बाकायदा एक सही फैसला वज़ीर आला ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब।